جی بالکل، میرے عقب میں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑی تعداد میں شہری آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے. یہ نہ ہی تو کوئی سیاسی تقریب ہے، نہ ہی کسی شادی کا فنکشن ہے، بلکہ یہ اسلام آباد پولیس کا کمیونٹی سینٹر ہے، جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں اسلام آباد پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، اور اسلام آباد پولیس کے افسران کی جانب سے ان کے لیے اہتمام کیا گیا ہے افطار کا. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھاتے چلیں کہ کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ جو ہے وہ اس وقت روزہ دار جو ہیں یہاں پہ موجود ہے، اور بالکل ایک گھر کے جیسا یہاں پہ اس وقت ماحول ہے. اور میں اگر مینیو کی بات کروں تو تازہ فروٹ ہیں یہاں پہ، چکن کے پیسز ہیں، تازہ نان ہیں، مشروبات یہاں پہ ہیں، اور اہلکار جو ہے کافی بڑی تعداد میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ موجود ہے. اور افسران بھی جو اعلیٰ افسران ہیں، جن میں ڈی آئی جی، اے آئی جیز اور ایس ایس پیز یہاں پہ موجود ہے، آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. اسلام آباد پولیس کے جوانوں کے لیے باہر کے ساتھ جتنے افراد ہیں، آئی جی صاحب نے اسپیشل انسٹرکشنز دی تھی کہ افطاری کرانی ہے تمام فورس کو. یہ اسی کا اہتمام آپ کو نظر آ رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ یہ جو ڈیوٹی سے فارغ ہمارے بندے ہیں وہ یہاں بیٹھ کے افطاری کر رہے ہیں، اور اس ٹائم جتنے بھی ناکوں پہ ہمارے جوان ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے لیے وہیں افطاری کا بندوبست کیا ہے. نہ صرف افطاری بلکہ سحری کا بھی. اور میرے خیال میں یہ اچھا اقدام ہے جس کو تمام ہمارے اس کی ویلفیئر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول بیٹھ کے اگر ایک مہینے میں 10,000 روپے کی افطاری کا خرچ کر رہا تھا تو وہ سرکار نے، پولیس ڈپارٹمنٹ نے اپنے سر لے کر ان کو فری یہاں پہ افطاری دی ہے. ثواب کا ثواب ہے، ویلفیئر کی ویلفیئر. جی بالکل، جو جوان ہیں اسلام آباد پولیس کے وہ یقیناً اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ پولیس کی نوکری ایک واحد ایسی نوکری ہے جس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی. آپ نے 24 گھنٹے جو ہے وہ آن ڈیوٹی رہنا ہوتا ہے. ایس پی ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، علی رضا، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ ہمارے جو آئی جی ہیں ان کے وین کے مطابق جوانوں کی ویلفیئر اور افطاری کا انتظام کیا گیا ہے. یہاں پہ جس ہم مارکیٹ میں کھڑے ہیں یہاں پہ 500-550 لوگ ہیں، اور ہم باقی جو ہمارے ناکہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی افطاری پہنچاتے ہیں. تو کلیکٹیولی 1000 بندوں کی افطاری کا اہتمام کیا گیا. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئے چلتے ہیں اہلکاروں سے بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. محترم ذرا آپ آگے آئیے گا. اسلام آباد پولیس کے اہلکار یہاں پہ موجود ہیں، کافی زیادہ یہ فریش دکھائی دے رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود، دن بھر ڈیوٹی کرنے کے باوجود اتنے فریش کیوں ہیں؟ آپ محترم یہ بتائیے کہ آپ روزے سے ہیں؟ جی جی. تو ماشاءاللہ اتنے تر و تازہ آپ یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں. تو بتائیے کہ افسران بھی اس وقت آپ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، افطار کی جا رہی ہے، تو کیا اس وقت آپ فیل کر رہے ہیں؟ کیسے جذبات ہیں آپ کے؟ بہت اچھے افسران کی طرف سے ہمارے لیے انتظام کیا گیا ہے، اور افطاری کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اہتمام بہت اچھا ہے، اور جگہ بھی اچھی ہے، اور مینیو بھی کافی اچھا دیا گیا ہے، اور ڈیوٹی کے بعد ہمیں ٹائم بھی دیا گیا ہے افطاری کے لیے پراپر. تو اس وجہ سے ہم لوگ فریش بھی ہیں. بس تھینک یو کہیں گے ہمارے آئی جی صاحب کو، انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے ہماری فورس کے لیے. تھینک یو بولے جی انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو. اور علی رضا جو ڈی آئی جی سیکیورٹی بھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر کا چارج بھی ان کے پاس ہے، اور آئی جی اسلام آباد پیار سے ان کو علی جی کہتے ہیں. ان کے فالو کرتے ہوئے جو ہے پورے ضلع کے جو اہلکار ہیں، جو افسران ہیں، وہ بھی ان سے جو ہے پیار یقیناً کرتے ہیں، اور ان کو پیار سے علی جی کہتے ہیں. ہم بھی آپ کو علی جی کہہ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. وائی ناٹ بھائی. اچھا یہ بتائیے گا کہ بڑا ہی بہترین یہاں پہ تمام دیکھنے کو مل رہا ہے، اور افسران یہاں پہ موجود ہیں، اور اہلکار جو ہیں ان کے چہرے پہ تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی، بالکل فریش دکھائی دے رہے ہیں. دن بھر ڈیوٹی بھی کرتے رہے ہیں، ناکوں پہ بھی رہے ہیں. تو مطلب آپ کی کیا فیلنگز ہیں اس وقت اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے؟ تھینک یو ویری مچ عثمان. جیسے آپ نے کہا یہ آنریبل آئی جی صاحب کا ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اور اس میں ہم پہلے دن سے آلموسٹ یہ 500 پرسنل جو ہیں یہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. لائک ایک فکس کیا گیا کہ آپ نے افطاری کرنی ہے. پہلے دن تو لوگ آئے 300 آئے، پھر بعد میں 400، 500، 600 پہ چلے گئے. یہ 600-700 ادھر بیٹھ کے کرتے ہیں ماشاءاللہ افطاری، اور اسٹینڈرڈ آپ نے دیکھ لی ہے. اور باقی پورے جو اسلام آباد کی فورس ہے تمام کو دی جا رہی ہے، جس میں ٹریفک ہے، جس میں سیکیورٹی ڈویژن ہے، جس میں باہر ناکے ہیں، تمام کے ساتھ. اور آئی صاحب کا یہ ایک اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ جتنے فیلڈ والے آفیسرز ہیں اپنے جوانوں کے ساتھ افطاری کریں. اسلام آباد پولیس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمیشہ سے وہ ٹرینڈ سیٹر جو ہے وہ رہی ہے، اور اس دفعہ ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ کر دیا گیا ہے. یہ بتائیے کہ ڈیلی کا سیم مینیو ہوتا ہے یا اس کو چینج بھی کیا جاتا ہے؟ بالکل ایسے ہی چینج ہوتا ہے جی مینیو. اس میں جیسے کل تھا وہ بریانی تھی، اس سے ایک دن پہلے تھا وہ قورمہ تھا، اور آج جو ہے وہ بروسٹ ہے
विद नान विद रायता, तो वो चेंज होता है अकॉर्डिंगली। एक मेन्यू बना हुआ है। हमारे पास बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं, हम बाहर से बाकी कम्युनिटी को भी बुलाते हैं, चैम्बर वाले आए हुए हैं, लॉयर्स आए हुए हैं, हमारे पास और जो सिविल के लोग हैं वो आए हुए हैं, तो वो सारे इस अफ्तार की एक खूबसूरत बात ये भी है कि यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग भी आते हैं, और जब वो यहाँ पे आके बैठते हैं अफसरान के साथ, एहलकारों के साथ, वो अपने अफ्तार भी करते हैं, उसके साथ साथ अपने मसाइल से भी आगाह करते हैं। और यहाँ पे अफ्तारी के साथ साथ हमने देखे कि काफ़ी मसाइल भी जो है वो हल किए गए हैं। अली रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आए आगे चलते हैं, एक और अफसर भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। इंतहाई नफीस शख्सियत के ये मालिक हैं। और काज़िम नकवी साहब, आपको जब भी हमने देखा है मुस्कुराते भी देखा है, तो इस मुस्कुराहट का सबसे पहले राज बताइएगा मैम। इसका राज सबसे जो है ना जी वो ये है कि आप राज़ी बिल रज़ा हैं, ठीक है ना, और अपनी नीयत ठीक रखें, अपना काम ठीक करें, और जो मेन जो मोटो है वो है कि जी खिदमत में अज़मत है। ये जो है ना बुनियादी जो चीज़ें हैं, ये अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, चाहे किसी वॉक ऑफ लाइफ से हैं, तो आप इंशाल्लाह जो है ना वो मुस्कुराते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इंतहाई खूबसूरत बातें इन्होंने की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे बेहतरीन इंतजामात जो है वो किए गए, और हमने देखा कि एहलकार जो है वो भी पीछे खड़े हुए बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने काज़िम नकवी साहब के साथ बैठ के इफ्तारी करनी है, तो तुम ज़रा साइड पे ही रहना। तो इसकी भी वजह बताएं कि इतनी मोहब्बत आपसे क्यों करती है? सर बात ये है कि पुलिस को मैं समझता हूँ काफ़ी सर्विस है पुलिस की, अभी 25-26 साल सर्विस हो गई है, कि जी ये पुलिस की जो पुलिस का काम है, ये मतहत का और अफसर का काम नहीं है, ये टीम वर्क है। अगर आप टीम वर्क बिलीव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको आप ऑन करते हैं, वो आपको ऑन करते हैं, और इज़्ज़त दो, इज़्ज़त लो, और उसमें हम अपना काम भी करते रहते हैं, और एक टीम वर्क के ज़रिए मतलब हम रिज़ल्ट्स भी अचीव करने के काबिल होते हैं। यकीनन टीम वर्क की ही सूरत में जो है वो मसाइल का हल निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका, प्लीज़ आप तशरीफ़ रखें। एक और यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि खूबसूरत बात ये है कि जो एहलकार हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो के, उनके चेहरों पे कोई परेशानी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। अफसरान उनके बिल्कुल साथ जो है वो बैठे हुए, और बेहतरीन अंदाज से जो है यहाँ पे अफ्तार जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। जी, इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी भी जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो एहलकारों के पास जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई चीज़ की कमी है तो उनको फ़ौरन जो है वो यहाँ पे मुहैया की जाएगी। आप देख सकते हैं कि वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं एहलकारों के साथ। हम भी इनसे बात करते हैं। अजय सर, ये बताइए, एक नया ट्रेंड इस्लामाबाद को, ये हमेशा क्रेडिट जाता है इस्लामाबाद पुलिस को कि हमेशा से वो ट्रेंड सेटर रही है, तो आपने एक और नया ट्रेंड जो है मुतारिफ़ करा दिया। 700 के करीब यहाँ पे एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, और उनके चेहरे अगर आप मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो बिल्कुल सबके फ्रेश नज़र आ रहे हैं। तो देखने में तो लग रहा है कि कहीं दिन को उन्होंने पानी तो नहीं पी लिया, या आपको देख के फ्रेश हो गए हैं। ज़रा ये सवाल से ज़रा बताइएगा। नहीं भाई, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस्लामाबाद पुलिस को वाकई ठीक कहा, दैट इस्लामाबाद पुलिस हैज़ ऑलवेज बीन ट्रेंड सेटर, और इस दफ़ा भी इस्लामाबाद पुलिस ने वही एक अपनी रवायत बरकरार रखी है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस का एक खूबसूरत मिजाज ये है कि इट्स ए ब्यूटीफुल ब्लेंड of police of every part of the country. You will find police officials from Punjab, from Sindh, from Khyber Pakhtunkhwa, from Balochistan, Gilgit, Kashmir. अब जब सबसे यहाँ पर आए हैं और ये ब्लेंड एक बड़ा खूबसूरत सा है, तो यहाँ पर इनकी फैमिलीज़, ज़्यादातर की फैमिलीज़ उधर हैं, तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इकट्ठे अफ्तारी करेंगे, इकट्ठे सहरी करेंगे, और क्योंकि हम एक फैमिली हैं, वी आर पार्ट ऑफ वन फैमिली, और इसी चीज़ को रखते हुए 700 के करीब डेली हमारे जो पुलिस हमारे ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर उनकी अफ्तारी होती है, हम उनके साथ अफ्तारी करते हैं। नाकों पे अलग अफ्तारी हो रही है, अच्छा, मैं नाकों पे भी जब हम आ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने कुछ अफसरान को देखा, कुछ एसपीज़ को देखा कि वो वहाँ पे जो है वो अपने एहलकारों के साथ मौजूद थे, और जब हम यहाँ पे एंटर हुए तो कुछ एहलकार आपस में एक दूसरे से सरगोशी कर रहे थे कि मैंने काज़िम नकवी साहब के पास बैठना है, तुम ज़रा साइड पे हो जाना। कोई कह रहा था कि मैंने अली जी के पास बैठना है, अली जी जिनको अली रज़ा, जिनको प्यार से अली जी भी कहते हैं, उनसे भी हमारी भी बात हुई है, आए साथ चलते भी हैं। और अच्छा, ये भी सुनने में आया कि जो एहलकार हैं ये मेन्यू उनकी मर्ज़ी से डिसाइड होता है, वो क्या खाना चाह रहे हैं क्या नहीं। हमने किया ये है इस दफ़ा कि एक तो यहाँ पर डेली 4 हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं वो डेली यहाँ पर मौजूद होते हैं, और यहाँ मौजूद होकर वो नफरी के साथ अफ्तारी करते हैं। इसके अलावा जो मेन्यू है, मेन्यू हमने बड़ा प्रॉपर एक टीम बना के, कमेटी बना के हम लोग बड़ा क्लियर करते हैं कि किसी दिन रोस्ट होगा, किसी दिन हम लोगों ने बिरयानी करनी है। वो चीज़, जो चीज़ हमारे जवानों को, हमारी नफरी को, हमारे ऑफिसर्स को पसंद है, हम उस पर आते हैं। और फिर एक और चीज़ कि आपको यहाँ पर जो नज़र आ रही है ना अफ्तारी, इसी तरह से कुछ एसपी नाकों पे हैं,
कुछ एसपीज ट्रैफिक में हैं, कुछ एसपीज सिक्योरिटी विंग में हैं, और ना सिर्फ अफ्तारी बल्कि सहरी, हम सब आउट होते हैं, हम सब इकट्ठे अफ्तारी करते हैं, इकट्ठे सहरी करते हैं, क्योंकि वी आर लाइक वन फैमिली, और एक मकसद के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो ये है कि लोगों की जान माल इज़्ज़त की रखवाली करनी है। उसी मकसद को लेके आगे चल रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं, आप ये देख लीजिए, तमाम के तमाम हमारे जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, कोई आपको ट्रैफिक के मिलेंगे, कोई यहाँ से सिक्योरिटी डिवीजन के मिलेंगे, कोई ऑपरेशन विंग के मिलेंगे, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन के मिलेंगे, कोई ट्रेनिंग के मिलेंगे, कोई सेफ सिटी के मिलेंगे, वो सारे एक हैं। कहा जाता है कि जो असल आईजी होता है वो आईजी साहब के जो स्टाफ ऑफिसर होते हैं, जो जैसे कि आपके नौशरवान हैं, वो होते हैं, क्योंकि हर चीज़ का कंप्लाइंस उन्होंने ही करवाना होता है। तो इनसे भी ज़रा हम आपके साथ ही गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि अक्सर कोई भी सिचुएशन हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो या कुछ भी हो, तो ये सबसे पहले हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं। मोहतरम, आप बताइएगा कि अभी 700 के करीब जो है वो यहाँ पे रोज़ा अफ्तार करवाया जा रहा है, तो मज़ीद क्या इसको बढ़ाने का इरादा है इस्लामाबाद पुलिस का? बिल्कुल इरादा है, और जिस तरह आईजी साहब ने बताया, आईजी साहब के बजट के मुताबिक एक बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट की गई है तमाम हमारी पुलिस फैमिली के लिए। जितने हमारे जवान इतनी मेहनत से काम करते हैं, इतनी पाबंदी के साथ ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, उनके लिए दिस इज़ द लीस्ट जो हम लोग कर सकते हैं। और आईजी साहब के बजट के मुताबिक हम लोगों ने अरेंज किया है, और इसको हर डे, एवरी डे इज़ बेटर देन द प्रीवियस वन, और इसको हर डेली के मुताबिक डेली के बेस के ऊपर हम प्रीवियस डे से हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम इसको और भी बेहतर करते रहेंगे, और इसको और भी इसमें बेहतरी लाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सुना है कि आईजी साहब काम भी बहुत लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल काम लेते हैं। दैट इज़ वाई वी आर सो सक्सेसफुल। काम तो पुलिस सर्विस में आप आए हैं तो आपने काम ही करना है। अच्छा, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि पुलिस फोर्स एक वाहिद ऐसी फोर्स है जिसमें वक्त की कोई कैद नहीं है, ना ही वो मौसम की उसमें देखा जाता है कि धूप हो या छाँव, बारिश हो या तूफ़ान, हर हाल के अंदर जो है वो उन्होंने परफॉर्मेंस देना होती है, और हर हाल में वो ड्यूटी अपनी जो है वो सर अंजाम देते हैं। क्या आईजी साहब के जाने के बाद भी आप क्या समझते हैं कि ये ट्रेंड जारी रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल, आई थिंक ये जो लेगेसी आई साहब ने सेट कर दी है, इसको आई थिंक जो भी नए ऑफिसर जो भी आएंगे उसको हमने कंटिन्यू करना है, और हम सारी इनकी टीम है। और अगर लेट्स से जो भी यहाँ होता नहीं, बट इदारे या जो इंस्टीट्यूशनलाइज चीज़ों को जो हम कहते हैं कि हमने कर दी है, वो ये कि अगर ये हम लोग हों या ना हों, बट ये चीज़ें फ्यूचर में कंटिन्यू करती रहनी चाहिए। हम हों या ना हों, ये चीज़ें जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। ये कहना था नौशरवान का, जो आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के स्टाफ ऑफिसर हैं, और तमाम उनके जो कंप्लाइंस है वो यही करवाते हैं। तो फिर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इनका ज़रा चेहरा दिखाएं। ये भी इसको काफ़ी फ्रेश जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आईजी साहब के पास हम दोबारा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अच्छा मोहतरम, ये बताइएगा, साथ में चलते भी हैं कि इस तरफ इस जाने भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं, वो क्योंकि इफ्तार भी करते हैं और साथ में अपने मसाइल भी बताते हैं। ये भी एक नया ट्रेंड हमने यहाँ पे देखा है कि साथ में वो यहाँ पे खाना भी खा रहे हैं और साथ में अपने मसाइल भी बता रहे हैं। तो ज़्यादातर अभी तक किस तरह के मसाइल से लोगों ने आगाह किया आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज़ जो बहुत मसाइल हमारे सामने आ सकते थे वो ये थी कि जब आप रमज़ान में अपनी फैमिली से दूर हैं, कोई लाड़काना से हैं, कोई रहीम यार ख़ान से हैं, कोई दीर से हैं, तो वो एक चीज़ आनी थी कि चेहरे मुरझाए हुए और कहना कि हमें कोई छुट्टी मिल जाए और हमने जाना है। लेकिन एक चीज़ जो हमने बड़ा क्लियर कर दी थी कि हम हर वक्त इकट्ठे एक ही जगह पर इकट्ठे बैठ के अफ्तारी भी कर रहे होंगे, एफर्ट भी कर रहे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे। आप लोगों ने सिर्फ हिम्मत करनी है और हमने एक फैमिली के तौर पे आगे चलना है। अभी जब तमाम आ रहे हैं, इनका जो मेन एक था वो अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हम इन सब इकट्ठे होकर कर रहे हैं, तो वो एक अकेलापन जो था वो नहीं फील हो रहा इनको। दूसरी चीज़ एक जो बाज़ औक़ात आती है, जो चीज़ आ रही है वो है कि ड्यूटी किस जगह पर, बाज़ ड्यूटी है, बाज़ की ड्यूटी नाके पर है, वो कहते हैं पेट्रोलिंग पे आ जाएं, बाज़ पेट्रोलिंग पे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में आना चाहते हैं। तो वो हम देख के जहाँ पर हमारे पास जगह होती है उसके मुताबिक हम एडजस्टमेंट भी करते रहते हैं और बाकी भी करते रहते हैं। वो कोई पोस्टिंग के मतलब आ जाता है। एक मैंने बड़ा हम सब बल्कि सारी टीम में कहूँगा हमने किया है कि डेली तकरीबन कोई 40 से 50 लोगों का ओवर करते हैं। उनको अगर कोई फाइनेंशियल इशू है या उनके उधर अगर कोई राजनपुर में है तो वो कहते हैं वहाँ पर मेरी फैमिली को इशू है, तो यहाँ से डीपीओ राजनपुर को फ़ोन करते हैं कि भैया आप काइंडली मेहरबानी करें, इनका काम करें। तो वो क्योंकि डेली 40 से 50 हम डेली सुन रहे हैं, डेली उनके मसाइल हल कर रहे हैं, तो इस वजह से कोई मसाइल जो है वो पाइल अप होकर इकट्ठे नहीं हो गए कि इकट्ठे होकर कोई ऐसी चीज़ हो। अच्छा, एक और खूबसूरत बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि माजी में हमने देखा है कि एहलकार जो है काफ़ी सहमे हुए होते थे। वो कहते थे कि अगर आईजी साहब के सामने पेशी है या आईजी साहब से कोई काम है या उनसे कोई मसला डिस्कस करना है तो वो कोई सहारा ढूंढते थे, वो कोई जो है रेफरेंस की तलाश में रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब तो जो है वो कांस्टेबल भी उठ के कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ आईजी साहब के पास बात करना है। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ये जो आपने एक और मैं इसको कहना चाहूँगा कि ये भी एक नया ट्रेंड है कि अब वो जो एक बैरियर था वो ख़त्म कर दिया आपने। इस बैरियर को ख़त्म करने की एक वजह ये है
कि असल में हमारा मकसद एक है। मैं जो फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ, देखें ना, काम, मेरा काम भी एग्जैक्टली वही है जो मेरे जवान का काम है। मेरे जवान ने भी लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने से दरीग नहीं करना, और मैंने भी वो दरीग नहीं करना। गोली जब आती है वो नहीं देखती कि किसके सीने से गुजरना है, किसके सीने से नहीं गुजरना। हमारा काम एक है, हमारा मकसद एक है, हम एक ही लड़ी में परोए हुए हैं और हमारा तमाम चीज़ एक है। ये जो फासले हैं ना, ये डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए, डिसिप्लिन इज़ मस्ट, क्योंकि ये डिसिप्लिन फोर्स है। लेकिन डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं कि एक ऐसी खौफ की फ़िज़ा कायम कर दी जाए कि कोई किसी के पास जा ना सके। अगर कहते हैं कि किसी की ज़रूरत का आपसे वाबस्ता होना अल्लाह की आप पे रहमत है। आप अगर रहमत को खुद ही दूर करेंगे, डरा के, धमका के, दरमियान में बैरियर्स क्रिएट करके, अपने पास लाना चाहिए ताकि ट्रस्ट डेवलप हो। इकट्ठे होंगे, एफर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली तो एक ही है। ये 10,697 जो है ना, ये 10,697 ने यहाँ पे जो 25 लाख प्लस लोग हैं उनके लिए उन्होंने दिन रात शब व रोज़ मेहनत करनी है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, काम ज़्यादा, ये बड़ा क्लियर है। ये चीज़ मैं फिर कहूँगा, ये कोई 7-8 घंटे की नौकरी नहीं है, ये नौकरी 9 to 3 नहीं है, ये नौकरी 9 to 9 है। और अगला 9 रात का 9 नहीं, वो सुबह वाला 9 है। 24 घंटे की नौकरी है, 24/7 है। और एक चीज़ बड़ी क्लियर की है अपने सब ऑफिसर्स को, अपने सब जवानों को, कि जिस दिन आईजी आपसे कम ड्यूटी करे, आपने उस दिन, अगले दिन आपकी छुट्टी है। अगले दिन आपकी छुट्टी है अगर आईजी इस्लामाबाद आपसे कम जो है वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। आईजी साहब, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे अब आप, क्योंकि एहलकार मुंतज़िर हैं कि कब आप उनके साथ बैठें और अफ्तार करें। आप भी हमारे साथ अफ्तारी जी ज़रूर, हम इधर ही भी मौजूद हैं। आपको आए, हम ज़रा पीछे भी लेकर चलते हैं, वहाँ के भी ज़रा मनाजिर दिखाते हैं आपको कि किस तरह से जो है वो लोग जो है वो भी अपना रोज़ा खोलने के बाद जब यहाँ पे नमाज भी एक साथ ही पढ़ेंगे। और अगर कहा जाए कि महमूद व याज़ के एक ही सफ़ में खड़े होने की खूबसूरत तशरीह जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आएगी कि अफसरान भी मौजूद हैं, यहाँ पे AIG, DIG, SSPs भी मौजूद हैं और साथ कांस्टेबल भी बैठे हैं और खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे अफ्तार भी कर रहे हैं और जो है वो गपशप भी लगा रहे हैं। और दिन भर की थकान जो है, उनका कहना है कि जब अफसरान हमारे साथ बैठ के अफ्तार करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। जी।